in this activity, what is happening? I took this 100 ml water and I dissolved the KMNO4 in it. So whole water will be pink in color because KMNO4, the color of KMNO4 is purple pink. Okay. Then I have took 90 ml of water and added 10 ml from this one beaker. So I will see that still there will be the pink color. Now again I have taken this 90 ml and added 10 ml from this container. So again I can see the pink color, but it will be little bit lighter in color. That means less particles will be present here. And again I took 90 ml here and added 10 ml from this container. So this again pink will be there, but now it is getting diluted. That means very less particles are now present in the last container. So this shows that the particles of KMNO4 is very small and they are getting transferred from one container to the another container. Okay. And you can see, you can still see the color because they are still present in between the water molecules. Okay. So write down here. Due to the dilution, write down here. Due to the dilution, the color of potassium permanganate, the color of potassium permanganate solution becomes lighter. Becomes lighter. If we keep on diluting the potassium permanganate solution, if we keep on diluting the potassium permanganate solution, we get a very dilute solution. We get a very dilute solution. But water is still colored. But water is still colored. So this basically, this experiment suggests that even 2 or 3 tiny crystals are there. This is the formula of potassium permanganate. I'm not writing this name, I'm writing KMNO4. So in this experiment, even if you have 2 to 3 tiny crystals of KMNO4, it can give color to a large volume of water. So this is experiment which you can see. And what is the observation here? What you have observed? If it not, this is the observation. Let's conclude what we can conclude. Each potassium permanganate crystal, okay, each potassium permanganate crystal itself must be made up of millions of small particles. Millions of small particles which keep spreading and imparting color. Is that clear to everyone? बात समझ में आया? क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल से ये बने हुए हैं कि इवन इफ यू आर डाइल्यूटिंग, तो अगर 4-5 क्रिस्टल भी उसमें प्रेजेंट है तो वो भी आपको कलर दे देगा.
Okay, and you cannot see those crystals because they are present in between the water molecules. Or each KMnO4 crystal is made up of millions of small particles. Understood? Yes, ma'am. Okay, write down this. And if you have any doubt, then you can ask me. Ayan, you understood? Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. Now then, next we will be talking about second characteristic. Second characteristics is that the particles of matter have spaces between them. अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में between को मैं B/W लिखती हूँ. ठीक है, तो this is not any new term. This is just I write like this between. ठीक है, fine. कि जो भी आपके पास मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है. How we can say this or how we can conclude this? Okay, so let's see. And you can also try this in home. So I have this container and I have filled water till here. Now water fill here and I have marked the level of water here. Marking कर दिया हमने, ठीक है? So this is your water level mark. Okay, and now what you can do is add 50 grams of sugar. We are adding 50 grams of sugar. Then आपको क्या करना है, उसको dissolve करना है. So you will what you are going to do? Stir with glass rod. And after stirring the glass rod, you will observe that the mark of water level is still same. It is still same. Okay. Now you have got this sugar solution there. So you have added, let's say this is your 100 ml water. Here let's mark that this is your 100 ml water. Now you can see that you have 100 ml of water, you have added 50 grams of sugar, and still the water mark is same. So where has this sugar has gone? कहाँ चला गया ये sugar? Okay, so actually these have occupied the spaces in between the water molecules. मतलब water molecules के बीच में पहले से ही कुछ ना कुछ space present था. They already have some spaces in between them. So now these sugar molecules have occupied those spaces. So therefore the watermark is still at that. अच्छा, बचपन में कहानी सुनी होगी कौवे का, उसको प्यास लगी थी, मटके में पानी था बट he was unable to get to the water. Yes, ma'am. And you have heard the story. तो उसमें क्या होता है कि he puts a lot of stones, और lot of stones put करने की वजह से पानी का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है. बट वो शुगर के केस में नहीं हो रहा है ना. या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैं एक बीकर लिया हमने, उसमें वाटर है और मैं ऊपर से सैंड पुट कर दूं. हमने यहाँ पे मार्क कर लिया. तो सैंड पुट करने के बाद यू विल सी कि वाटर जो है लेवल बढ़ जाएगा, मार्क नीचे रह जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा.
because I have sand present here. So sand has occupied some space. तो sand particle जो है वो इतना बड़ा particle है that you can see from your eyes. तो वो water molecule से बीच का space occupy नहीं कर पाता. बट शुगर मॉलिक्यूल जो है इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से जो भी स्पेसेस प्रेजेंट होगा उसके इन बिटवीन में वो शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे दैट इज वाई वाटर का लेवल बढ़ा नहीं बट अगर आप सैंड यूज कर लो या चॉक यूज कर लो कुछ भी और ऐसा सब्सटेंस यूज कर लो तो लेवल ऑफ वाटर इज गोइंग टू इंक्रीज इज दैट क्लियर टू एवरीवन Yes, ma'am. so Yes, write down here ma'am. draw this diagram first and then write down okay so observation is even after dissolving 50 grams of sugar in 100 ml of water, the volume has not increased. ठीक है तो कंक्लूजन क्या हुआ as there is no change in the volume this suggests that there are spaces between the particles of water and these spaces are occupied by the sugar molecules या particles बोल सकते हो आप or you can say that water molecules या particles are not packed tightly ठीक है वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दे आर नॉट पैक्ड टाइटली एकदम टाइटली पैक नहीं है ओके दे हैव स्पेसेस they have spaces in between them write down this let me know when you are done
शिवांश, डेंसिटी किसकी डेंसिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हो? जो चीज डिसॉल्व ही नहीं हुई तो वो डेंसिटी कैसे इंक्रीज करेगा? उसका कोई लेना देना ही नहीं है, बोथ आर इमिसिबल. हाँ Ayan, you have to write all these things. You have to write whatever I'm writing on the screen, whatever you see. Okay, that is how you are supposed to make the notes. You need not to watch the videos and I will send it to you, then you will copy. No, you have to write the notes in the class only. Done, ma'am. Done. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. हाँ शिवांश, शुगर सोल्यूशन ऐड करने के बाद डेंसिटी बढ़ जाएगा. It is no longer water, no. Okay, now third characteristics is that the particles of matter are constantly moving. Okay, they are constantly moving. अच्छा, अभी you some of you might be having small temple area in your house. Okay, very small temple area. So your mom must be doing all these pujas and everything. So she might be using all those incense stick. Okay, incense stick is what your agarbatti type ka. Okay, so mom is doing this, your mother is doing this puja and everything in a temple room, and suppose you are in your another room studying or doing something. So you feel this very pretty smell, very nice smell of agarbatti. So since your mom is doing this in the puja house and you are in your room, how come you are able to smell that thing? Or your mom is cooking food in the kitchen and you know that कि हाँ आज तो कुछ अच्छा बन रहा है. Okay, how do you get to know this? Ma'am, smell. Yeah, but why? How come that smell from kitchen or that smell from puja house reaches to your room? That smell spreads through air. Yes, that smell spreads through air. That means that smell, whatever the smell is, it is the particles which is present. It's not, the smell does not means it does not have any particles. It do have very small particles present in them which you cannot see. Okay, so those particles, when you're cooking something, uh, those particles are released in the air and they are traveling through the air and they are moving or coming towards you, or they are going in every other directions. Okay, so this suggests that the particles of the matter are constantly moving. Okay, so द बेस्ट एविडेंस जिसको सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करते हैं या तो डिफ्यूजन या फिर ब्राउनियन मोशन. ठीक है, दोनों ही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो भी हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो व्हेन वी लाइट incense stick, incense stick is your agarbatti, in one corner of a room, its fragrance, that means very good smell, okay, spreads in the whole room. Okay, so what is happening here? Incense stick, when burns,
releases, or you can say that produces gases या फिर वेपर्स, कुछ ना कुछ डिफरेंट गैस फॉर्म करता है या वेपर फॉर्म करता है, हैविंग प्लीजेंट स्मेल. Having pleasant smell. Now the particles of the gases produced rapidly move in all directions. They mix with the particles of gases in the air. And reaches to our nose. तो गैस पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके, गैस पार्टिकल्स भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. ये जो इंसेंस स्टिक के गैस पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं गैस पार्टिकल्स के साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ, एंड दे रीच टू आवर nose and you get this very nice pleasant fragrance from the incense stick. Okay, लिखो इसे. कंक्लूजन क्या हुआ? Particles of the incense stick are constantly moving. Write down this. Done? Okay, now we can do another example here. That Summer, that particular direction is because of some wind or something. Maybe थोड़ा सा wind चल रही हो, हवा चल रही हो, तो फिर वो particular direction में आपको move होते हुए दिखाई देगा. Otherwise, अगर कुछ भी नहीं है रूम पे, या फैन के मूवमेंट होने की वजह से आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देगा. अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. देयर इज नथिंग लाइक, कुछ भी मूवमेंट नहीं है एयर में, एंड लाइक कुछ भी फैन नहीं है, आउटर मूवमेंट नहीं है, देन इट्स गोइंग टू मूव इन एवरी अदर डायरेक्शन. ओके, एक और एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं कि when we put few crystals of copper sulfate, जिसका कलर होता है ब्लू, into water, then
whole water. ठीक है. Now I am taking this beaker. इस बीकर में वाटर है और मान लो यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रखा हुआ है. दिस इज योर कॉपर सल्फेट. ठीक है. तो यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे स्टिल कॉपर सल्फेट का पार्टिकल जो थोड़ा छोटा हो गया है, बट पूरे इसमें जो है ब्लू कलर फैल गया है. पूरे इसमें ब्लू कलर फैल गया है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन और पार्टिकल्स का मूवमेंट इज द सेम थिंग. ओके. So you can write down here the spreading, या फिर you can say that due to the motion of the particles of copper sulfate the colorless water becomes colored. And they mix with water. जो particles है water के साथ mix हो जाते हैं. Okay, this is called as diffusion. This is called as diffusion. Diffusion की definition क्या है? It is the movement of particles from higher concentration to the lower concentration. So कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल था वहां पे इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट है. और यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऑलरेडी वाटर में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो मूव कहाँ से कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. इज दैट क्लियर? Understood everyone? Let's Yes, ma'am. potassium permanganate, it dissolves in water, no? Who said that it does not dissolve in water? Because the particles of potassium permanganate is colored, no, somewhat, and the particles of sugar या फिर salt is colorless, so you don't see the color in water. But since potassium permanganate particles are colored, so then you see the color there. They do dissolve in water. They are showing the color. That does not mean that they have been dissolved in water. They are dissolved in water. Since they have moved from one side to the another side and evenly separate, dissolve हो गए, वो dissolve होता है. But क्योंकि उसके particles colored है तो आपको दिखाई दे रहा है वो. और sugar और salt के particles colored नहीं होते तो दिखाई नहीं देता. हाँ वर्षा, सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है. We'll talk about it.
Okay, sorry. Okay, we'll talk about it. Solid में भी थोड़ा सा diffusion होता है. We'll talk about it. हाँ शिवांश, आप पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट. पूरे चैप्टर में हम एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना. कोई भी कलर्ड क्रिस्टल ले लो. अरे आप वो ले लो, ये उजाला का एड आता है ना, आप इंक ले लो. इंक भी तो पार्टिकल्स हैं. अगर आप उसको इंक का एक ड्रॉप डालोगे पानी में तो पूरा का पूरा जो वाटर है वो कलर्ड नहीं हो जाता. होता है कि नहीं होता. तो इसका मतलब है कि इसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो भी स्पेसेस हैं इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं. यस, आप डेटॉल ले लो. डेटॉल को ऐड करते आपको थोड़ा सा वाइट वाइट सा कुछ दिखाई देता है, वो डेटॉल के पार्टिकल्स हैं. वो भी वाटर के जो इन बिटवीन स्पेसेस है उसमें अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं. ओके. अच्छा ये बताओ, जब हम ये कॉपर सल्फेट को हम डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो क्या सिर्फ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या फिर वाटर के भी मूव कर रहे हैं, या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तब डिजोल्व हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट की मूवमेंट की वजह से डिजोल्व हो रहा है? टेल मी. दोनों. यस शिवांश, बोथ. गुड, दोनों. है ना. इस अगर मैं आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि सिर्फ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, नहीं. एक्चुअली क्योंकि वाटर कलरलेस है तो आपको वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई नहीं देंगे. ठीक है. तो एक्चुअली दे आर आल्सो मूविंग एंड particles of copper sulfate are also moving and they're mixing together. So you can write down here the spreading of blue color of copper sulfate, the spreading of blue color of copper sulfate crystals in water is due to movement of both copper sulfate particles as well as water particles. ना दोनों ही मूव करते हैं. ऑल्दो एक मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली दोनों का ही मूवमेंट है और इंटरमिक्सिंग हो रही है. चलो हो गया. Now fourth characteristic property is your the particles of matter attract each other. The particles of the matter attract each other. Okay. मेरे पास आपके पास पेंसिल है या फिर आपके पास पेन है, तो all these objects which you observe around you, they are made up of particles. है ना, पार्टिकल से बने हुए हैं. तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, why they are not falling apart? वो एक दूसरे से क्यों कंबाइन होके जुड़े हुए हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे से एकदम कंबाइंड है? व्हाट इज द रीजन हियर? Attraction between them. Yes, there is always some sort of attraction between these particles, always. This is the only reason that all the matter which you find around yourself, they are
इन द सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। गैसेस में अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, है ना। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। सो घर पे आपको पता होगा कि हम एलम क्रिस्टल यूज करते हैं टू क्लियर वाटर। डज एनीवन नो अबाउट इट? किसी को पता है इसके बारे में? या फिर फिटकरी नाम सुना होगा कभी? हैज एनीवन हर्ड अबाउट इट? एलम क्रिस्टल, Yes, ma'am. Word. फिटकरी, है ना। तो वो जो फिटकरी के जो क्रिस्टल्स हैं वो एकदम, इट इज अ केमिकल कंपाउंड। ओके, केमिस्ट्री का केमिकल कंपाउंड है। सो दैट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर। तो आप उसके क्रिस्टल्स को जब आप देखोगे तो क्रिस्टल पार्टिकल से बना होगा, एंड ऑल दोज पार्टिकल्स आर बाइंड टुगेदर, एक दूसरे से एकदम बाइंड करके रखे हैं। इसका मतलब है दे आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, क्रिस्टल ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसे नॉर्मली हाथ से पकड़ने से क्रिस्टल ब्रेक नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं, उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में देयर इज अ quite strong force of attraction in between them. That is why they have got this crystal shape. Okay, so you can write down here. There are some, इवन हम किससे बने हुए हैं? हम भी तो पार्टिकल से बने हुए हैं ना, एटम से बने हुए हैं, हम भी उसी से बने हुए हैं। तो अगर वो एटम्स प्रॉपर्ली बाइंड टुगेदर नहीं होंगे तो हम खुद भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री, अच्छा जब हम केमिस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट? Chemicals. Chemistry is the study of Chemicals. chemicals. Okay, anyone, does anyone know any other answer? What we actually study in chemistry? No one? Ma'am, study of Hmm. nature in chemical state. Okay, study of nature in chemical state. Okay, good. Anything else? Ma'am, bounding of particles. Bonding of particles. Okay, great, good. कोई और अपना contribution देना चाहता है? Ma'am, to know that some matter in our surroundings, how why it is there or how it is there, how it is made. Okay, good. So fine, but Samarth has given the exact answer that it is the study of various types of matter. ओके, एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है कि केमिस्ट्री में वही ये केमिकल को उसमें मिक्स कर दो, वो मिल जाएगा, ये बन जा रहा है, वो बन जा रहा है ना। दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर हेड अबाउट केमिस्ट्री, बट एक्चुअली केमिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर में कौन सा टाइप के पार्टिकल्स हैं, एटम्स की स्टडी हो रही है उसके अंदर। जब एटम्स ब्रेक हो रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, हमको सिर्फ केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स हमको ध्यान में आता है, बट एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ऐसा लगेगा कि मैम जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तब हम थोड़ी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन भी तो पार्टिकल्स के बीच में ही हो रहा है, एटम्स के बीच में ही तो हो रहा है ना रिएक्शन। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एटम्स के बीच में ही हो रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स और एटम। ओके फाइन, चलो next we'll talk about, okay, so there are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together. Okay, which bind them together. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम एक स्पेशल टर्म बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट टर्म इज नोन एज कोहेशन। So write down next point here. The
force of attraction between the particles is called as cohesion. 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 This force of cohesion is different for different particles. Okay, अगर मैं प्लास्टिक ले लूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, अगर मैं वुड ले लूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, मतलब इट वेरीज अकॉर्डिंग टू मैटर, बट देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बट देयर विल ऑलवेज बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन देम, या फिर यू कैन से दैट फोर्स ऑफ कोहेशन प्रेजेंट इन बिटवीन देम. Okay, now let's talk about an example. लिख लिया ना सबने? Let me know. Done everyone? आगे बढ़े? Yes, ma'am. अच्छा, आप में से किसी ने स्विमिंग किया है? कभी स्विमिंग किया हो या Yes, ma'am. कभी Yes. नदी में गए हो पानी में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो स्विमिंग करते टाइम थोड़ा सा मूव करना डिफिकल्ट होता है हाँ, ma'am. है ना. इट्स नॉट दैट इजी जितना आप नॉर्मल अभी अभी आप मूव कर सकते हो पानी के बाहर, या उतना आसानी से आप मूव कर पाते हो पानी के अंदर? No, ma'am. नहीं. नहीं कर पाते, ठीक है. बट अगर आप मूव करना चाहो, अगर आप रन कर रहे हो पानी में तो यू कैंट रन प्रॉपर्ली इन वाटर, बट अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हम जैसे नॉर्मल रहते हैं उसमें रन करना चाहोगे तो आप क्लियरली यू कैन रन. यस और नो? Yes, ma'am. तो ऐसा क्यों है? वाटर में जब आप मूव कर रहे हो वहां पे भी पार्टिकल्स हैं वाटर के, ओके. और जब आप एयर में मूव कर रहे हो तो वहां पे भी एयर के पार्टिकल्स हैं, गैसेस तो प्रेजेंट है ना, आपको पता ही है. 70% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेस, तो पार्टिकल्स तो वहां पे भी है, बट आप बहुत ही इजीली मूव कर जाते हो एयर में. क्यों ऐसा हो रहा है? Force of attraction is Force of different. attraction is different between two objects. तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, जब हम वाटर में बात करते हैं तो वहां पे हमारा मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. अच्छा, एक वॉल से क्रॉस करके दूसरे साइड जा सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप हैरी पॉटर की मूवी में हो, बट अदरवाइज यू कांट डू, है ना. वॉल कैसा बना है? सॉलिड पार्टिकल से. तो क्या आप वॉल को क्रॉस कर सकते हो, उसके थ्रू पास कर सकते हो? नहीं. दैट मीन्स walls में जो particles हैं they are so tightly attracted to each other that they do not have any spaces in between them. अब उनके बीच में spaces नहीं है तो आप move नहीं कर सकते. वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट सॉलिड के कंपैरेटिवली इट इज वेरी लेस, तो आप स्टिल यू कैन मूव इन वाटर. वहां पे स्पेसेस हैं वाटर के बीच में तो यू कैन मूव इन वाटर. और एयर में जो आपके पास पार्टिकल्स है उसके बीच में तो बहुत सारा स्पेस है, तो दैट इज व्हाई यू कैन मूव वेरी इजीली इन एयर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, so you can write down here the force of attraction is maximum in the particles of solid matter and minimum in the particles of
gaseous matter. So it is all about the force of attraction present in between the particles. ठीक है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट की लेड होती है, आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के ब्रेक कर सकते हो। इसका मतलब है कि उसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बट आपके पास कोई वुड का लॉग हो और उसको आप अपने हाथ से ब्रेक करने की कोशिश करो, तो क्या वो इतनी आसानी से ब्रेक होता है? नहीं, बिकॉज उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी स्ट्रांग है, तो इतना आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। यू विल ईदर नीड अ एक्स और समथिंग एल्स। अंडरस्टूड? Now just go through all these four characteristics and let me know if you have any doubt in any one of these uh, in these things. Okay, tell me, else we will be moving ahead. Done, ma'am. डन? रोहित हो गया आपका? Yes, ma'am. ओके फाइन। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सम अदर टर्म्स, कुछ डिफरेंट टर्म्स जिसकी आप यूजुअली केमिस्ट्री में यूज करोगे। फर्स्ट इज योर रिजिड, ओके, एंड सेकंड वन इज योर फ्लूइड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड? रिजिड टर्म से क्या समझते हो? Strong to break. Okay, good, Rohit. Anyone else? Yes, strong, Shivansh. Good, somewhat. It's very hard. Okay, so rigid का मतलब क्या होता है? Which is not flexible. जो flexible ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं? That it is rigid in nature. और जो थोड़ा सा flexible हो, easily flow कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? Fluid. So write down here. Rigid means inflexible और unbending. That means जिसको आप bend नहीं कर सकते. Okay, and fluid means a material या फिर substance which can flow easily and requires a container to keep it. Okay, तो जो fluids होंगे वो मुझे कुछ ना कुछ कंटेनर चाहिए होंगे उसको रखने के लिए। ओके, और रिजिड जो है वो इनफ्लेक्सिबल होता है एंड अनबेंडिंग होता है। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, इसमें एग्जांपल कौन सा आ जाएगा? सॉलिड्स। सॉलिड्स आपके कैसे होते हैं? इनफ्लेक्सिबल होते हैं और अनबेंडिंग होते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल बोल सकते हो कि मैम ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है ऑल्दो इट इज अ सॉलिड, है ना? क्या दे सकते हो ऐसा कोई एग्जांपल? Sponge. यस, स्पॉन्ज आप बोलोगे सॉलिड है बट फ्लेक्सिबल तो है ही, तो क्या मैं उसको सॉलिड में कंसिडर नहीं करूंगी? वेयर शुड आई कंसिडर स्पॉन्ज? Rubber band, yes, rubber band is also one that example. Tell me, so are this rubber or this sponge is not a solid? Yes, They sir. are it's- solid. Yes, ma'am. They are solid. Then why they can bend or they are flexible in nature? Ma'am, because their particles are not bound tightly. Force of attraction is less. यस, स्पॉन्ज का तो केस क्या होता है कि स्पॉन्ज के जो इन बिटवीन में आपको स्मॉल स्मॉल स्पेसेस दिखते हैं ना, तो दैट स्पेसेस इज
कंटेन्स व्हाट, एयर, उसमें एयर होता है। तो जब आप स्पॉन्ज को प्रेस करते हो तो एयर बाहर बाहर निकल जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। तो वो है तो सॉलिड ही, बट उसके इन बिटवीन में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है और जिसमें एयर भरी हुई है। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो एयर बाहर निकल जाती है। तो स्पॉन्ज का तो ये केस हो गया। रबर के केस में क्या होता है कि जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, है ना, इसके पार्टिकल्स थोड़े से वीकली बाउंड है, तो आप उसको स्ट्रेच करते हो तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से पार्टिकल्स जो है आपके वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप स्प्रेड करने से कितना ही एनर्जी दे रहे हो, आप बहुत एनर्जी दे रहे हो। फॉर दैट मैटर यू शुड नो कि अगर आप अपना एक हाथ भी मूव करते हो, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। बिना एनर्जी के आप इवन हाथ भी नहीं मूव कर पाओगे। आपने देखा होगा, आप या फिर आपको पता होगा, जो लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं ना, खाना प्रॉपरली नहीं खा पाते, दे कांट इवन प्रॉपरली मूव देयर हैंड, बिकॉज उनकी बॉडी में उतनी एनर्जी ही नहीं होती। बट हमारी बॉडी में हम कोई भी छोटा सा भी मोशन कर रहे हैं, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी। तो जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वो स्ट्रेच हो जाता है। एंड व्हेन यू लूजन इट, तो यू आप क्या कर रहे हो, एनर्जी हटा रहे हो, आपने अब एनर्जी कोई नहीं लगा रही, तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है। पेपर का क्या केस है कि पेपर तो सॉलिड है ही, बट उसके वो इतना पतला होता है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो यू कैन इजिली टीयर देम अपार्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है। बट ऑल्दो ऑल दीज आर सॉलिड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब सॉलिड्स नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। फ्लूइड्स की बात करेंगे तो फ्लूइड्स में एक्चुअली हम दो चीजें लेते हैं। एक आ जाएगा आपके पास लिक्विड और दूसरा आ जाएगा gases. Gases can also flow, although हमको we can't see them through our eyes, but that does not mean that they do not flow. Okay, they also flow. So now liquid के केस में क्या हो जाएगा कि a liquid occupies the lower part of the container. ठीक है, किस जिस भी कंटेनर, अगर मैंने ग्लास लिया, मैंने ये कंटेनर लिया, मैंने ऊपर से इसमें डाला वाटर, तो वाटर सिर्फ लोअर पार्ट को भर देगा जितना आपने पानी लिया। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे कंटेनर में फैल जाए। बट गैसेस के केस में क्या होता है, ओके, सो इट इज अ, आप लिख सकते हो अ गैस ऑक्यूपाइज द होल कंटेनर। वो होल कंटेनर ऑक्यूपाई करता है। मतलब मैं अगर ये कोई कंटेनर ले लूँ और मैं इसमें ब्रोमीन गैस ऐड कर दूँ, ब्रोमीन गैस आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी, ब्राउन कलर का होता है। तो वो क्या कर लेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर पोर्शन में जाके रह जाएगा, नहीं, वो पूरे कंटेनर में आपको दिखाई देगा, पूरा फिल्ड रहेगा पूरा कंटेनर। बट वाटर मॉलिक्यूल्स में दोनों ही फ्लो कर रहे हैं, बोथ कैन फ्लो, बोथ आर फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में हम मोस्टली सिर्फ लिक्विड को कंसिडर करते हैं, बट फॉर दैट मैटर फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं। ठीक है, सो बोथ कैन फ्लो, बट वाटर जो है या फिर जो भी लिक्विड है वो सिर्फ लोअर पोर्शन ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर। और ब्रोमीन जो है जितना अवेलेबल स्पेस होगा वो सब का सब गैसेस क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो यहाँ से एक और टर्म आ जाता है फ्लूइडिटी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ liquid and gases to flow is called as fluidity. Okay, it's called as fluidity. लिख लो। Write down this.
ओके, आई होप हो गया होगा. Yes, ma'am. ओके, डन, ग्रेट. सो आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक. Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. इज, ओके गुड, नेक्स्ट इज योर classification of matter as solids, liquids, and gases. Write down this topic. In this, write down on the basis of physical properties. हाँ शिवांश, वो फोर्थ भी होता है, प्लाज्मा एंड एवरीथिंग, बट वो हम बेसिक, बट वी डोंट स्टडी दैट, लाइक इसमें नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है. बेसिक बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम. अभी कुछ न्यू मैटर्स भी आ रहे हैं, ओके, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस. So on the basis of physical states, all the matter can be classified into 3 groups. और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से आपके पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इंडिविजुअली हम इन सब की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है. आपको बहुत हद तक आता भी होगा, ज्यादा डिफरेंट है नहीं. सो फर्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. First is your properties of solid. So easy आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है. Okay, just give me 1 minute. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. फिक्स्ड शेप होगा और क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अब मैं वुड को कंप्रेस करना चाहूँ या कोई भी मेटल के पार्टिकल को कंप्रेस करना चाहूँ, तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा. Then they have usually high densities. इसका मास यूजुअली ज्यादा होता है, तो इनकी डेंसिटीज भी क्या होती है? हाई होगी, ठीक है, बिकॉज मास काफी हद तक ज्यादा है. नेक्स्ट जो है आपके पास, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. मतलब कंटेनर को पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फिल कर दे. ओके, यू विल हैव सम, अगर सॉलिड आप राइस से फिल कर रहे हो
तो पूरा कंटेनर थोड़ी फिल हो जाएगा, सिर्फ लोअर वाला पोर्शन फिल होगा, है ना, जहाँ जहाँ पे राइस है। फिफ्थ पॉइंट है दे डू नॉट फ्लो। सो दीज आर ऑल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, देन बात करते हैं लिक्विड की। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी if you talk about is they have fixed volume but not fixed shape। शेप उनका फिक्स नहीं है। शेप तो वो होगा, अगर मैं ग्लास में रखूं पानी को तो शेप ग्लास जैसा हो जाएगा, अगर हमने बकेट में रखा है तो शेप बकेट जैसा हो जाएगा। तो वॉल्यूम भले ही मैं अगर ले लूं कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके कौन से कंटेनर में रखे हैं उसका शेप क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ओके, सेकेंड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दे हैव मॉडरेट हाई डेंसिटीज। मॉडरेट हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि सॉलिड से कम होगा बट लिक्विड से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, देन अगेन डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। एकदम पहले नीचे वाला पोर्शन फिल होगा, अब अगर पानी ज्यादा है तो पूरा कंटेनर फिल हो गया, पानी कम है तो हाफ ही फिल रहेगा, है ना। दीज आर दी प्रॉपर्टीज। देन फिफ्थ वन इज दे कैन फ्लो इजिली, आसानी से फ्लो हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। फर्स्ट, they have neither fixed volume nor fixed shape। ठीक है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम हो पाता है, ना ही उनका क्या होगा, कोई फिक्स शेप होगा। पहली बात तो ये। सेकंड, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आप उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। अच्छा, अभी इतना बहुत न्यूज में चल रहा है कि हमारी कंट्री में ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ना, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है पेशेंट्स को। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन हम लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है या किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है? मैम लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म मैम। यस, तो इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या किया है, गैस को क्या किया, कंप्रेस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि छोटे कंटेनर में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस जो है वो फिल कर पाए। अगर मैंने कंप्रेस कर दिया तो हम ज्यादा फिल कर पाएंगे ना। तो जब हम उसका प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, तो प्रेशर रिलीज करने पे क्या हो रहा है, जो भी लिक्विड ऑक्सीजन है वो गैस में कन्वर्ट होके आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। उनकी डेंसिटी क्या है, काफी लो है। ठीक है, दे fill the container completely। They fill the container completely। And 5, they can flow easily। बहुत ही आसानी से they can flow। ठीक है, now write down this। Let me know when you are done। Done, ma'am.
Done, ma'am. Done? Okay, Done, ma'am. fine. So these are all the properties of solids, liquids and gases. CNG is also बेटा liquid में ही होता है. It is compressed natural gas. मतलब हमने उसको compress किया हुआ है. Okay. LPG also liquefied petroleum gas is also liquid in nature. नहीं 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 राघवी, हम कंप्रेस करके लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम फ्रीज करके करते हैं. फ्रीजिंग में और कंप्रेसिंग में डिफरेंस होता है. ओके. जब आप फ्रीजर में पुट कर रहे हो वाटर को, तो यू आर नॉट कंप्रेसिंग इट. कंप्रेसिंग करने के लिए तो बहुत प्रेशर वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, जो आपके पास रेफ्रिजरेटर में पॉसिबल नहीं है. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेक द अटेंडेंस. एक्चुअली अटेंडेंस ले लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू.